Okay, let's continue with lines and planes. इसमें next we have to find the distance of a point from a line. You have a line जिस पे you have a point A, ठीक है? ये line से there is a point P, clear? जिसके position vector is alpha bar. This is your A, उसके position vector is A bar. Okay, we have a line parallel to this line that is given by B bar, and we need to find this distance PM. Distance हमेशा कैसा find out करते हैं? We take जो भी चीज से जो भी लाइन से we have to find out, वहां से you should have the perpendicular straight line लेते हैं. So the distance of a point P that is given by alpha bar from a line that is A bar plus lambda B bar. ये तो अपने we have seen. R bar is equal to A bar plus lambda B bar, where A bar is a point on the line and B bar is parallel to that line. So इसका formula is under root value of alpha bar minus A bar square minus, in a bracket you got alpha bar minus A bar dot B upon value of B bar, that is the magnitude of B bar whole bracket square. अब ये कैसा होगा? You know this is line, right? Line R bar is equal to A bar plus lambda bar and it's passing through point A, that is A bar. M is the foot of the perpendicular drawn, ठीक है? यहाँ से perpendicular ले लिया आपने. So R bar is equal to A bar lambda bar, that you know it. AM, ठीक है? AM, that is the magnitude of AM is projection of AP. इसका जो magnitude है, that is the projection of AP on the line. Projection of AP on B, as B is parallel to this line. B bar का line is parallel to this. So the projection, that is AM is equal to AP bar dot B bar upon magnitude of B bar. Now let's take a triangle AMP, right angle triangle, use Pythagoras theorem. PM square is equal to AP square minus AM square. Pythagoras theorem से ये हो गया, clear? Now AM का तो अपने को यहाँ पता चल गया. AP bar projection A है, right? Into dot B bar upon magnitude of B bar. ये अपने पहले ये formula देखा है, clear? So what you gonna do now? Substitute the value. AP bar आपका ऐसे ही रह गया, that is the magnitude of AP bar minus AM bar. AM bar का तो you have this AP bar. If you see AP bar, let's come back to this diagram. AP bar आपका क्या होगा? AP bar जो है ये इसकी बात कर रहे हैं अपन. AP bar will be alpha bar minus A bar, clear? ये आपका हो गया AP का alpha bar minus A bar whole bracket square हो गया, because AP square का AM का you got it from here. तो AP bar तो आपका alpha minus A bar है, clear? Dot B bar upon modulus of B bar whole bracket square. Squares इसलिए हो गए क्योंकि Pythagoras theorem में squares थे, and we have just substituted the value of AP and AM. So PM square is this thing, so PM will be under root of magnitude of alpha bar minus A bar square minus bracket में you have ये alpha bar minus A bar dot B bar upon magnitude of B bar whole bracket square. ये फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे whenever you have a point, ठीक है? वो पॉइंट से एक लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होता है ये फाइंड आउट करने के लिए. एंड इसमें you know it, B bar is the line parallel to the वो लाइन जिससे अपन वो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं. एंड alpha bar is the vector, position vector of point that we have taken as P. तो P का position vector है, and A bar is the point on the line, जिस line से वो distance we are measuring it. So A bar is the position vector of the line, the position vector of the point on that line. Now let's find the length of perpendicular drawn from a point. ये आपका point है, ठीक है? P is already given to you, and this is A bar, right? And this is B bar. Formula के हिसाब से R bar is equal to A bar and B bar. तो आपके पास A bar है, B bar है. Even you got the alpha because you got this point. तो alpha bar भी आपको मिल जाएगा. Just substitute in this formula, and alpha bar आपका हो गया, that is 3i plus 2j plus k, क्योंकि आपके coordinates क्या थे वहाँ पे? Coordinates आपके थे
the coordinates were 3, 2 and 1, right? कोऑर्डिनेट इज 3, 2 and 1, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा 3i plus 2j plus k, राइट? ये आपका यहाँ पे बन गया है 3i plus 2j plus k अल्फा बार का। ए बार और बी बार तो आपके पास ऑलरेडी वहां पे था, जस्ट सब्स्टिट्यूट इन दिस, अल्फा बार माइनस ए बार 3 minus 7 हो गया, तो दैट इज 4i 2j minus 7k minus 5j and k minus 7k is k minus 6k is minus 5k। अब मैग्नीट्यूड इसका फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का यू नो दिस, स्क्वायर्स ले लो इसके, प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड टेक द स्क्वायर रूट ऑफ इट, तो आपका दैट केम टू 166। अब फॉर्मूला में अगर इफ यू सी तो यू गॉट अल्फा बार माइनस ए बार, अल्फा बार माइनस ए बार तो आपको ये मिल गया, डॉट बी बार, डॉट बी बार है तो आप कैसे करेंगे इसको, जब भी आपके पास डॉट आता है यू गोना जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स, -4 -2k, सॉरी -4 -2 दैट इज 8, -5 एंड j के साथ यहाँ क्या है 2, तो दैट इज -10 एंड -5 एंड 3 दैट इज -15, so you got in -17 स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार तो सिर्फ बी बार को ले लो, बी बार आपका ये है इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर एंड के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर एंड यू गॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल दिस एंड यू विल हैव द distance from a point on the line। now distance of a point आपके पास पॉइंट P है, ठीक है, तो ये आपका हो गया, आई तो नहीं होगा 2j plus 3k, राइट? अब आपके लाइन आपके पास ये है x plus 3 upon 5 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z plus 4 upon 3। let's have this diagram, लाइन आपकी ये है, m is the foot, राइट? p के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, let's let m lies on the line, m तो लाइन पे है, राइट? and the coordinate of m आपका कैसा होगा, x plus 3 upon y is equal to lambda, clear? तो 5 lambda minus 3 is equal to x, तो 5 lambda minus 3 आपका x हो गया, y minus 1 upon 2, y minus 1 upon 2 that is also equal to lambda, ये भी lambda को इक्वल है, तो 2y is equal to -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो आपको y के कोऑर्डिनेट आके सेम वे यू गॉट द z के कोऑर्डिनेट। अब इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, दिस आर द डायरेक्शन रेशियो माइनस, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो करने इसके कोऑर्डिनेट माइनस इसके कोऑर्डिनेट, -0 दिस -2, राइट? एंड द थर्ड z का कोऑर्डिनेट है -3, तो यू गॉट द डायरेक्शन रेशियो 5 lambda minus 3, 2 lambda minus 1 and 3 lambda minus 7। so the direction ratios of the given lines are given by 5, 2 and 3, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज आ गए 5, 2 and 3। pm is perpendicular to the given line, तो pm perpendicular है तो ये क्या हो जाएगा 5 into 5 lambda minus 3, 2 into 2 lambda minus 1 and 3 into 3 lambda minus 7 that is equal to 0। solve this, इससे आपको lambda का वैल्यू आ जाएगा, ओपन द ब्रैकेट, इसके ब्रैकेट ओपन कर लो, जैसे कि 25 लैम्बडा माइनस 15 हो गया प्लस 4 लैम्बडा माइनस 2 हो गया, एंड सॉल्व दिस, आफ्टर कंप्लीटली सॉल्विंग यू गॉट द लैम्बडा एज 1। अगर लैम्बडा 1 हो रहा है तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5 इंटू लैम्बडा दैट इज 5 इंटू 1 इज 5 माइनस 3 इज 2, तो ये आपका x आपका 2 आ गया, 2 लैम्बडा प्लस 1, लैम्बडा 1 है, 2 प्लस 1 इज 3, ये आपका y हो गया, एंड z का 3 into 1 is 3 minus 4, so that is -1। this is how you're going to get the coordinates। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ pm फाइंड आउट करो, ठीक है, देन फाइंड द डायरेक्शन रेशियो आपको मिलने के बाद, राइट, पहले तो m के कोऑर्डिनेट्स ये कर लो, सिंस m is on this line, तो डायरेक्ट लाइन पे है m, तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा बिकॉज दिस इज इक्वल टू लैम्बडा,
तो वैसे y और z के वैल्यू मिल जाएंगे. देन फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ pm. ठीक है, n के कोऑर्डिनेट में pm के मिले तो क्या हो जाएंगे, x x के माइनस करेंगे y वाले, y से माइनस करेंगे n, z वाले z से. You will have in this form direction ratio. ये डायरेक्शन रेशियो से you will have direction ratios of the given line. ठीक है, once you have the direction ratio of the given line, pm is perpendicular, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, you will get the value of lambda and substitute the value of lambda in this form. You will get the coordinates, required coordinates. Now m के coordinates मिल गए आपको. Now use the distance formula. So that is x2 minus x1 whole bracket square plus y2 minus y1 whole bracket square plus z2 minus z1 whole bracket square, and this all are under root. So we'll get the under root 21. Now let's see what is the skew line. Skew lines, ये दो लाइन स्पेस में है जो इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहे एंड पैरेलल भी नहीं है. ठीक है, मतलब अगर इफ यू एक्सटेंड दिस लाइन तो कहीं तो दूर जाके ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे, बट एट प्रेजेंट जब स्पेस में है वो लाइन को एक्सटेंड करे तो इंटरसेक्ट हो जाएंगे. बट स्पेस में दो लाइनें दैट आर नेदर पैरेलल ना इंटरसेक्टिंग, so those lines are called the skew lines. अब distance between the skew line, distance between the skew lines, आपके पास एक लाइन ये है r bar is equal to a1 plus lambda 1 b bar, and दूसरा आपके पास है r bar is equal to a2 plus lambda 2 plus b2 bar. तो दैट ये अगर आपके पास दो skew lines है, राइट, जहाँ पे आपका b1 is parallel to a1, ठीक है, ये लाइन को b bar is parallel and b2 bar is parallel to line a2 bar. Clear? Now when you have this, so what you going to do, let's take line L1 and L2, ये आपके skew lines है. इसके equations also you have, right? इसके equations है, and let PQ be the segment that is perpendicular to L1 and L2. ये आपका segment. आपने distance find out करना है ना, distance बोले तो you'll find the perpendicular distance इसके बीच में. तो अपने PQ ले लिए. Now to find the length of PQ, line L1 A के थ्रू पास हो रही है, B के थ्रू पास हो रही है, that is A1 bar and A2 bar. ठीक है, and this is also parallel to B1 bar. ये line B1 bar को parallel है, and this line is parallel to B2 bar. Right? PQ is perpendicular to both L1 and L2. अगर ये इसको perpendicular है, then it is parallel to B1 bar into B2 bar. अब यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा, n कैप, राइट. PQ का यूनिट वेक्टर होगा n कैप along with B1 bar into B2 bar. ठीक है, B1 into B2 bar को अपने क्या लिए, यूनिट वेक्टर ले लिए, दैट इज n कैप. नाउ PQ जो आपका प्रोजेक्शन है ऑन AB, ठीक है, PQ इज अ प्रोजेक्शन ऑन AB along B1 bar into B2 bar is equal to n cap. Now PQ प्रोजेक्शन आप कैसे देंगे, AB dot n cap. तो इसका फॉर्मूला हो गया PQ is equal to A2 bar minus A1 bar dot B1 bar into B2 bar upon magnitude of B1 into B2. तो इसमें सबसे पहले कैसे करेंगे, you have to say कि this A bar यहाँ पे पॉइंट है, B bar ये पॉइंट पे, this line is parallel to L1 and B2 का parallel to L1. Then PQ is perpendicular to, ये दोनों को perpendicular है. As PQ is perpendicular to both P1 and P2, it is parallel to B1 into B2. अगर ये इसको perpendicular है तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है B1 बार एंड B2 बार, राइट, वो क्रॉस प्रोडक्ट विद पैरेलल. PQ जो है पैरेलल जिसको है वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट को, इट्स नॉट टू दिस लाइन, ये लाइन को नहीं है, उसके क्रॉस प्रोडक्ट को है. क्लियर? तो दिस इज हाउ यू गोना यूज द फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला याद रखो, स्क्यू लाइंस के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट करने यू गोना यूज दिस फॉर्मूला. क्लियर? और पहले वाला जो फॉर्मूला था दैट इज फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन. ओके, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 0 बिकॉज दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो दैट इज, ये आपका 0 हो जाएगा. क्लियर? यहाँ पे भी अगर इफ यू हैव अ लाइन का इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म में तो इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो इसको अगर तुम डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लेंगे x2 minus x1,
y2 minus y1, z2 minus z1, a1 a2 b1 b2, so that will equal to 0. Now let's find the shortest distance between the line. ये आपकी लाइन है, clear. Shortest distance का formula you know it. All you have a2 बार है आपके पास. पहला वाला है आपका, this is a1, right? This is b1 lambda के वाला. This is your a2 and this is your b2. Clear? ये formula में substitute कर लो, right? All values are given to you. a2 minus a1 कर लो पहले, you will have this value. ठीक है, a2 minus a1 सीधे सीधे subtract होता है. Then you got cross product of b1 into b bar. Cross product के लिए we use matrices. ये आ गया, but you have to find the magnitude. Magnitude to what you will go? We'll take the square root and squares of all the coefficients. I का coefficient, j का and k का coefficients. You will have इसका magnitude. Clear? Substitute all the values, and you will have the answer. अब यहाँ पे you got a bar minus a2 bar minus a1 bar है into b1 bar into b2 bar. ये वाला आपको ये values यहाँ से मिल जाएंगे. That is 2. Clear? Okay, now how you got this 2? इसमें क्या हो जाएगा? -1 into -2 you got it 2. Then k यहाँ नहीं है, that is 2 into 0, that is 0, and यहाँ j नहीं है, that means 0j. 0 into 4 is again 0. तो आपके सिर्फ -2 into 1 -1, that is 2. तो ये आपका 2 आ गया है. Now shortest distance आपको find out करना है, ठीक है? So let's have the equation for this. ये आपका हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए गिवन लाइन r bar is equal to, ये जो है आपके -1, राइट, -2 एंड -3, इसके अपोजिट साइन देते हुए i j के साथ आते हैं, राइट. याद रखने के लिए a bar आपका जो बनेगा वो ये कोएफिशिएंट देगा 1 2 एंड 3, तो i + 2j + k आ जाएगा, प्लस लैम्डा. b बार जो है आपका वो नीचे डिनोमिनेटर्स के नंबर है, ठीक है, उसके साथ आएगा 2i + 3j + 4k. सिमिलरली यहाँ पे दिस विल बिकम 2i + j + 5k. ये आपका हो गया a बार एंड दिस इज b बार. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूला में जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लो जैसा आपने पहले किए है. सिमिलरली यू विल फाइंड a बार माइनस a बार आपको आ जाएगा. सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे सब्ट्रैक्शन करना है. क्रॉस के लिए आप क्या करेंगे? यू विल यूज द मैट्रिसेस या डिटरमिनेंट का फॉर्म. क्लियर? देन टेकिंग द स्क्वायर रूट आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स ऑफ ईच कोएफिशिएंट्स के साथ उसको करते हैं, राइट. एंड देन a2 बार 8 माइनस a बार इनटू डॉट b बार क्रॉस b2 बार. इसमें वही होगा -1 into -1 -1, 2 into 2 is 4, and 2 into -2 is 2 into -1 is -2. तो ये आपका हो गया -1 4 -2. तो that will be -1 + 4 will give you 3. 3 - 2 is 1. तो ये आपका 1 आ गया. जस्ट उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, you'll get the answer. अभी शो दैट द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. अभी लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो क्या आना चाहिए? आपका आंसर 0 आना चाहिए. अगर आपका आंसर 0 आ गया दैट मींस द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. तो इंटरसेक्टिंग करने के लिए आपको क्या है, ये जो है आंसर इसका, दिस शुड बी 0.
बाकी आपके पास a bar, b bar, a1 bar, b1 bar, a2 bar, b2 bar, all are given in this. Now let's find the distance between the parallel lines. Distance between the parallel lines is given by a2 bar minus a bar cross b cap. ठीक है, तो हाउ यू गोना दिस थिंग, आपके पास ये लाइन है, ये दो लाइन है, राइट, एंड ये दो लाइन पैरेलल है, क्लियर, L1 एंड N2, उसमें b बार जो है दैट इज पैरेलल, दोनों को पैरेलल रहेंगे बिकॉज दिस टू लाइंस आर पैरेलल, तो b बार पैरेलल रहेंगे, तो यहाँ पे a1 लैम्बडा b बार है एंड a2 लैम्बडा वापस b बार है, b1 एंड b2 नहीं लिए बिकॉज ये दोनों भी लाइन पैरेलल है, उसको ये पैरेलल। नाउ लेट्स टेक इट, ये अगर एंगल थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस bm अपॉन ba हो गया, तो bm हो जाएगा आपका ab इज इक्वल टू साइन थीटा, ab डॉट 1 साइन थीटा, तो वो हो जाएगा 1 यानी दैट इज यूनिट वेक्टर, राइट, तो ab b कैप मैग्नीट्यूड ऑफ b कैप डॉट साइन थीटा हो गया, दिस विल बी ab इंटू, ये तो यूनिट वेक्टर है, b कैप, एंड this will be a2 bar minus a1 into b cap, the distance is parallel, ये आपका आ गया फॉर्मूला, bm is equal to a2 bar minus a1 bar into b cap, इसका मैग्नीट्यूड इज द फॉर्मूला। तो ये याद रखने का, अगर लाइंस पैरेलल है तो इसका यू गोना यूज दिस फॉर्मूला, स्क्यूड लाइन है तो उसका क्या फॉर्मूला है, एंड पॉइंट से अगर लाइन पे है तो दैट इज द फॉर्मूला। तीन फॉर्मूलाज वी हैव सीन। ना ये तो सिंपल है, आपके पास a बार b बार है, तो इफ यू सी b बार जब लाइंस आर पैरेलल तो आपके b बार दोनों भी सेम रहते हैं, राइट, सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला एंड यू विल हैव द आंसर। इसमें ये याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आता है तो व्हाट वी डू इज लाइक वी सॉल्व देम इन मैट्रिसेस फॉर्म में। लोग ने अल्टरनेट मेथड की है यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट, वो फॉर्मूला से भी आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस है, so you can use this formula and you will have the same answer. अब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस है तो इसमें आपका क्या होगा, ये तो आपके बी बार सेम आ गए दोनों भी, राइट, बी बार आपके सेम है, यहाँ आपके पास ये है नहीं, ए बार है नहीं, देखो एक्स के साथ कोई और टर्म नहीं आया, एक्स प्लस 1 या वाई प्लस कुछ नहीं आया, तो यहाँ सिर्फ आर बार इज इक्वल टू लैम्बडा, ये आ गया आपका, दिस इज योर a2 बार, पर -1 है तो वहाँ 1 आई क्या रहेगा, तो दैट इज आई, ये भी प्लस जे प्लस के, now you have this, just substitute in the formula and you will get the answer. इसमें याद रखने का, ये जो टर्म्स आते हैं ना दैट इज योर a बार, बट -1 है तो दिस विल बी विद द अपोजिट साइन और आई कैप के साथ आएगा, एक्स के साथ है दैट विल विद -1 है तो दैट विल बी +1 विद जे कैप, क्लियर, और यहाँ कुछ नहीं है इसलिए आपका यहाँ पे ए बार आई नहीं है, दैट इज 0, a1 बार आपका 0, देखो इट्स मेंशन ओवर हियर, a2 है एंड b बार है। Now let's solve the exercise 6.2. Clear? 6.2 solve कर लो। Formulas याद रखना है और कुछ नहीं है। Formulas how you gonna use those formulas वो आपको याद होने चाहिए। वो एक बार आ गया तो things will be easier for you. Clear? चलो, let's move on to the
नेक्स्ट